Hello friends, I am Bhupendra sir from Saraswat International Academy, Ratavapi. Friends, in previous video we had seen second, third and fourth paragraph of second chapter, second, third and fourth paragraph of second chapter. Okay, so today in this video we are going to ahead in this chapter. Okay, so we will start from fifth paragraph. Okay, fifth पैराग्राफ. ओके, तो मित्रों यह पैराग्राफ में हम देखते हैं कि मछुआरों के वचनों को सुनकर तीनों मछलियाँ अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यत भविष्य ने खुद को बचाने के लिए क्या किया. ओके मित्रों, तो नाउ स्टार्ट फिफ्थ पैराग्राफ. ओके, अथ तयोः निश्चयं ज्ञात्वा अनगत विधाता निष्क्रान्तः सः परिजनेन. द्वौ इमौ तत्र एव जलाशये स्थितौ अपरे द्युः धीवरैः आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तं. जालेन बद्धः प्रति उत्पन्नमतिः मृत्वत् आत्मनं संदृश्य स्थितः. ततो जालात् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरं नीरं प्रविष्टः. यत् भविष्यः धीवरैः प्राप्तः व्यापारितः च. अतः एव उक्तम् अनागत विधाता च प्रति उत्पन्नमतिः तथा द्वाव एतो सुखम् एधेते यत् भविष्यो विनश्यति. ओके मित्रों, नाउ सी ट्रांसलेशन of fifth paragraph. अथः तयोः निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रान्तः सः परिजनेन. Then having learned the decision of the two, अनागत विधाता went out of the lake with the members of his family. Okay, then having learned the decision of the two, Anagat Vidhata went out of the lake with the members of his family. Okay, ahead. Dvau imo tatra eva jalasaye sthito. द्वौ इमौ तत्र एव जलाशये स्थितौ. These two stayed there in the lake itself. These two stayed there in the lake itself. अपरे द्युः धीवरैः आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तम्. अपरे द्युः धीवरैः आगत्य जलाशये जालं क्षिप्तम्. Next day the fishermen came and threw the net. Next day the fishermen came and threw the net. जालेन बद्धः प्रति उत्पन्नमतिः मृत्वत् आत्मनं
समदर्श्य स्थितः जालनबद्धः प्रति उत्पन्नतिः मृत्वत् आत्मनं समदर्श्य स्थितः trapped in the net प्रति उत्पन्नति remained showing himself like a dead one. Trapped in the net प्रति उत्पन्नति remained showing himself like a dead one. Okay. Mrutvat means like a dead one. ततो जालात् अपसारितः यथाशक्ति उत्प्लुत्य गंभीरं नीरं प्रविष्टः. Then, being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Okay, again, then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Apsaritah. Apsaritah means thrown, otherwise removed. Utplutya. Utplutya means jumped. Utplutya means jumped. Gambhiram. Gambhiram means deep. Okay. Again, then being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. यद भविष्यः धीवरैः प्राप्तः व्यापादितः च. Yad Bhavishya was caught and killed by the fishermen. Yad Bhavishya was caught and killed by the fishermen. Okay. Atah eva uktam. Therefore it is said. Therefore it is said. अनागत विधाता च प्रति उत्पन्नति तथा द्वाव एतो सुखम एधते यद भविष्यो विनश्यति. अनागत विधाता च प्रति उत्पन्नति तथा द्वाव एतो सुखम एधते. अनागत विधाता, one who provides for the future, and prati utpannati, one who is ready witted. Dva eto sukham edhete, these two prosper happily. These two prosper happily. Again, anagat vidhata, one who provides for the future, and prati utpannati, one who is ready witted. These two prosper happily. While yad bhavishyo vinasyati, yad bhavishya, one who believes in come what may happen, gets completely destroyed. Gets completely destroyed. While yad bhavishya, one who believes in come what may happen, gets completely destroyed. Okay. Again, anagat vidhata, one who provides for the future, and prati utpannati, one who is ready witted. These two prosper happily. While yad bhavishya, one who believes in come what may happen, gets completely destroyed. ओके मित्रों, तो यह पैराग्राफ में
अनागत विधाता दोनों के निर्णय को सुनने के बाद अपने परिवार के साथ झील को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और ये दोनों यद भविष्य और प्रति उत्पन्नमति वहाँ झील में ही रुके, अदरवाइज रहना पसंद किया। अगले दिन मछुआरे वहाँ आए और झील में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल को फेंक दिया। अब मित्रों, जाल में फंसा हुआ प्रति उत्पन्नमति खुद को मुर्दा की तरह मछुआरों को दिखाता रहा। बाद में मछुआरे ने उनको मृत समझकर जाल से फेंक दिया और वह तुरंत अपनी ताकत के अनुसार कूद गया और गहरे पानी में चला गया। यद भविष्य को मछुआरों ने पकड़ लिया और मार डाला, इसलिए यह कहा जाता है अनागत विधाता और प्रति उत्पन्नमति ये दोनों अपने को बचाकर सुखपूर्वक आगे बढ़ते हैं जब यद भविष्य का नाश होता है। ओके मित्रों, नाउ सी रिपीट द ट्रांसलेशन। Then, having learned the decision of the two, Anagat Vidata went out of the lake with the members of his family. These two stayed there in the lake itself. Next day, the fishermen came and threw the net. Trapped in the net, Prati Utpannamati remained, showing himself like a dead one. Then, being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Yet Bhavishya was caught and killed by the fishermen. Therefore, it is said, Anagat Vidata, one who provides for the future, and Prati Utpannamati, one who is ready-witted. These two prosper happily, while Yad Bhavishya, one who believes in come what may happen, gets completely destroyed. ओके मित्रों, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर पूर्ण होता है। तो मित्रों, नाउ सी ग्लोसरी। फर्स्ट, जलाशयः। जलाशयः मीन्स lake, otherwise pond. जलाशय मीन्स lake, otherwise pond. सिनोनियम, जलाशय शब्द का सिनोनियम भी हमें याद रखना है। सिनोनियम क्या होगा? सरह, अदरवाइज हदह। जलाशय शब्द का सिनोनियम सरह, अदरवाइज हदह। ओके, सिनोनियम हमें याद रखना है। धीवरः, धीवरः मीन्स
fisherman. Dhivarah means fisherman. Alapah. Alapah means conversation. Alapah means conversation. Hadaha. Hadaha means lake, otherwise pond. Angadaha. Agadaha means medicine. Parijanaha. Parijanaha means relative, otherwise kinsman. Kulisaha. Kulisaha means thunderbolt, otherwise a weapon of Indra. Niram. Niram means water. Gambhiram. Gambhiram means deep. Gambhiram means deep. Pura. Pura means formerly. Pura means formerly. Utplutya. Utplutya means jumping. Utplutya means jumping. Vyaparitavyaha. Should be killed. Should be killed. Uktam. Uktam means said. Anvesitaha means search, otherwise found. Anvesitaha, search, otherwise found. Saunjata. Saunjata means born, otherwise produce. Niskrantaha. Niskrantaha means removed. Niskrantaha means removed. Apsaritaha. Apsaritaha means removed. Last one, samadhate. Samadhate means solves, otherwise promises. ओके मित्रों, तो मित्रों यह चैप्टर में आपको फर्स्ट ग्लोसरी संस्कृत की नोटबुक में लिखनी है. ओके, ग्लोसरी फर्स्ट लिखनी है, त्यारबाद ट्रांसलेशन लिखना है जो मैंने पीडीएफ में दिया है. ओके, तो पीडीएफ में से आपको ट्रांसलेशन सेकंड चैप्टर का नोटबुक में कॉपी करना है. ओके, और ट्रांसलेशन के बाद आपको एक्सरसाइज भी लिखनी है. ओके, तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है? ग्लोसरी. ग्लोसरी के बाद ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन के बाद एक्सरसाइज. ओके, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. ओके मित्रों, नाउ सी द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत. मीन्स दिए गए ऑप्शंस में से हमें योग्य आंसर, योग्य विकल्प फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. द्विवर्णम वचनम कीदृशम आसीत. तो आंसर आएगा कुलिशोपमम. ओके, आंसर क्या आएगा? कुलिशोपमम. सेकंड वन क्वेश्चन. अयम जलाशयम अन्यम जलाशयम गंतुम कः मत्स्यः निश्चयं करोति. आंसर आएगा अनागत विधाता. ओके मित्रों, थर्ड वन. धीवरैः उक्तम अद्य अस्माकं वृत्ति संजाता. वृत्ति ही स्त्रीलिंग है. ओके, सो आंसर आएगा संजाता. समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4. अनागत विधाता डैश सह निष्क्रांतः. सह अव्यय है, सो त्रिजी विभक्ति का आंसर आएगा. सो आंसर आएगा परिजनन. समझ में आया? सह अव्यय है और सह अव्यय की वजह से त्रिजी विभक्ति का आंसर आएगा और त्रिजी विभक्ति का आंसर परिजनन है. ओके, सो आंसर आएगा परिजनन. क्वेश्चन नंबर 5. प्रति उत्पन्नमति प्राह भविष्यत अर्थे प्रमाण अभावत कुत्र मया गंतव्यम. आंसर आएगा गंतव्यम. ओके, लास्ट वन. अनागत विधाता
प्राह अत्र क्षणमपि अवस्थातुं डैश न युक्तम। आंसर आएगा अवस्थातुम। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 2। एक वाक्यांश संस्कृत भाषायाम उत्तरम लिखत। ओके, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, जलाशय के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म। आंसर आएगा अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति एंड यत भविष्य। ओके मित्रों, ये वाला आंसर हमें फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में भी मिलता है। ओके, जलाशय अनागत विधाता प्रति उत्पन्नमति यत भविष्य च इति त्रयोः मत्स्याः वसन्ति स्म। तो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में ये वाला आंसर हमें मिलता है। ओके, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, अपरे द्युः द्विवरैः जलाशय किं क्षिप्तम। तो आंसर आएगा जालम। ओके, लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में हमें आंसर मिलेगा अपरे द्युः धीवरैः आगत्य जलाशय जालम क्षिप्तम। ओके, मिल गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, को द्वौ मत्स्यो जलाशय एव स्थितौ। आंसर क्या आएगा? प्रत्युत्पन्नमति च यद भविष्य द्वौ मत्स्यो जलाशय एव स्थितौ। ओके, प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्य। जालात् अपसारितः प्रति उत्पन्नमतिः कीदृशं नीरं प्रविष्टः? गंभीरम नीरम। ये वाला आंसर भी मित्रों लास्ट पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा। ओके, लास्ट पैराग्राफ में देखो, जालात् अपसारितः सह गंभीरम नीरम प्रविष्टः। ओके, समझ में आया? ओके, लास्ट वन, कः मत्स्यः धीवरैः व्यापारितः। तो आंसर क्या आएगा? यत् भविष्यः। ये वाला आंसर भी हमें लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज सेकंड भी कंप्लीट होती है। नाउ सी द एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, अधोलिखितानां कृदन्तानां प्रकारं लिखत। तो मित्रों ये वाली एक्सरसाइज में हमें कृदंत प्रकार लिखना है। दिए गए शब्दों का कृदंत प्रकार लिखना है। ओके, तो ये वाला फर्स्ट है, फर्स्ट वन, संजाता। संजाता कौन सा कृदंत आएगा? कर्मणि भूत कृदंत। कौन सा आएगा? कर्मणि भूत कृदंत। तो मित्रों आज हम कृदंत कौन से शब्द में कौन सा कृदंत आएगा वही देखेंगे। ओके, जब मैं ग्रामर सेक्शन में कृदंत चैप्टर चलाऊंगा तब कृदंत के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके, कि कर्मणि कृदंत कब और कैसे बनता है, कर्तरि कृदंत, विध्यर्थ कृदंत। ओके, हमें 10th स्टैंडर्ड में 5 कृदंत के अभ्यास करना है। ओके, संबंधक भूत कृदंत, हेत्वर्थ कृदंत, कर्तरि और कर्मणि भूत कृदंत। ओके मित्रों, तो आज हम
कौन से शब्द में कौन सा कृदंत है यही देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन में आंसर आएगा कर्मणि भूत कृदंत। सेकंड वन अनुष्ठेयम यम है। ओके, सफिक्स आंसर आएगा विद्यर्थ कृदंत, विद्यर्थ कृदंत। समाकरणीय, समाकरणीय आंसर आएगा संबंधक भूत कृदंत। बद्ध, बद्ध आंसर आएगा कर्मणि भूत कृदंत। अवस्थातुम आंसर आएगा हेत्वर्थ कृदंत। गंतव्यम आंसर आएगा विद्यर्थ कृदंत। ओके मित्रों, तो कृदंत के बारे में हम डिटेल्स में भी चर्चा करेंगे जब ग्रामर पार्ट्स में कृदंत चैप्टर में चलाऊंगा, तब मैं आपको कब और कैसे कृदंत का रूप बनता है, तैयार होता है, आपको मैं बताऊंगा। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 4, समास प्रकारम लिखत। तो मित्रों, यह एक्सरसाइज में हमें समास का प्रकार लिखना है। ओके, तो मित्रों ये वाला क्वेश्चन भी हम डिटेल में जब ग्रामर पार्ट्स में चलाऊंगा, समास के बारे में समास चैप्टर चलाऊंगा, तब मैं आपको यह समास की व्याख्या, कितने समास है और किस तरह से समास का रूप बनता है, ओके, सभी के बारे में हम बाद में देखेंगे। केवल आज कौन से शब्द में कौन सा समास है यही देखते हैं। ओके, फर्स्ट वन जलाशय, आंसर आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। द्विगुणालाप सॉरी बहुमत्स्य, आंसर आएगा बहुव्रीहि। ओके, थर्ड वन द्विगुणालाप, आंसर आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। फोर्थ वन प्रत्युत्पन्नति, आंसर आएगा बहुव्रीहि। फिफ्थ वन प्रमाण अभावात, आंसर आएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ओके मित्रों, तो समास के बारे में भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे जब ग्रामर सेक्शन में मैं समास का चैप्टर चलाऊंगा, तब मैं आपको समास के बारे में बताऊंगा। ओके, कौन से वर्ड्स में कौन सा समास है। ओके, समास को कैसे हम समास को कैसे हम पहचान सकते हैं, यह सब कुछ हम बाद में ग्रामर सेक्शन के वक्त सीखेंगे। ओके मित्रों, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत। ओके, डिसजॉइन द संधि, समझ में आया। फर्स्ट वन यद भविष्य ह प्लस च प्लस इति, क्या होगा संधि विच्छेद यद भविष्य ह प्लस च प्लस इति। सेकंड वन श्रुतोदयम, संधि होगी श्रुत प्लस अयम। ओके, थर्ड वन प्रति उत्पन्नति ही, तथा प्रति उत्पन्नति ही प्लस तथा। ओके मित्रों, तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5 भी कंप्लीट होती है। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 6, रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। ओके मित्रों, तो एक्सरसाइज 6 में हमें क्या करना है, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स के स्थान पर हमें कौंस में से योग्य प्रश्नवाचक पद रखकर प्रश्नवाक्य बनाना है। ओके, प्रश्नवाक्य बनाना है। कैसे बनाना है, फर्स्ट हमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स को रिमूव करना है। ओके, और अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स के स्थान पे हमें क्या रखना है,
जो ब्रैकेट में ऊपर वर्ड्स दिए हैं, ओके, प्रश्नवाचक वर्ड्स है। ये प्रश्नवाचक वर्ड में से योग्य वर्ड हमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स के स्थान पे रखना है और सेंटेंस बनाना है। ओके, समझ में आया? तो देखते हैं फर्स्ट वन, बहुमस्य अयम हदः। तो आंसर क्या आएगा? बहुमस्य के स्थान पे कौन सा आंसर आएगा? कीदृशः। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कीदृशः अयम हदः। ओके, सेकंड वन, अस्माभिः रात्रौ एव समीपसरः गंतव्यम। तो रात्रौ एव शब्द के स्थान पे हमें क्या रखना है? कदा। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? अस्माभिः कदा समीपम सरः गंतव्यम। ओके, समझ में आया? थर्ड वन, अनागत विधाता परिजनन सह निष्क्रांतः। परिजनन शब्द के स्थान पे हमें क्या रखना है? कैन। तो आंसर सेंटेंस क्या बनेगा? अनागत विधाता कैन सह निष्क्रांतः। ओके, नाउ सी फोर्थ वन, प्रतीक उत्पन्नमति ही जालात अपसारितः। जालात शब्द के स्थान पे हमें क्या रखना है? कस्मात। ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा? प्रति उत्पन्नमति ही कस्मात अपसारितः। ओके, नाउ लास्ट वन, धीवरैः यद भविष्य व्यापारितः। ओके, यद भविष्य के स्थान पे हमें कौन सा वर्ड रखना है? कह। ओके, सो आंसर क्या बनेगा? धीवरैः कह व्यापादितः। ओके मित्रों, तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट। नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 7। तो मित्रों, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हमें सेंटेंसेस अरेंज करना है। एक्सरसाइज नंबर 7 में स्टोरी के अनुसार सेंटेंसेस अरेंज करना है। 6 में से कौन सा सेंटेंस फर्स्ट आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, वैसे। ओके मित्रों, तो मैंने किया है, जो फोर्थ वन है वो फर्स्ट आएगा, सेकंड पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड आएगा। ओके, तो फोर्थ वन हमें सेंटेंस फर्स्ट लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है? फर्स्ट वन लिखना है। समझ में आया? तो बाद में जो थर्ड वन है वो थर्ड वन ही आएगा, जो सेकंड है वो फोर्थ में आएगा। ओके, जो फिफ्थ वन है वो फिफ्थ में ही आएगा, और जो सिक्स वन है वो सिक्स में ही आएगा। तो हमें स्टोरी के हिसाब से सेंटेंस अरेंज करना है और लिखना है। ओके, समझ में आया? नाउ एक्सरसाइज नंबर 8, आंग्ल भाषायाम उत्तरम लिखत। इंग्लिश में हमें आंसर लिखना है। ओके, यह आपको लिखना है। सब क्वेश्चन के आपको आंसर ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। ओके, मैंने आपको ट्रांसलेशन पीडीएफ में दिया है। ओके, आपको पीडीएफ में से ट्रांसलेशन लिखना है नोटबुक में, और ये वाला आंसर भी फाइंड आउट करके लिखना है। ओके, सब क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको पीडीएफ में ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। ओके, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो ये वाला आंसर हमें इंट्रोडक्शन में लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। इंट्रोडक्शन में लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। ओके, एक बार देख लो। अ मैन शुड थिंक अबाउट द रेमेडी क्योर फॉर forthcoming difficulties in advance, and he should intellectually find out the way when he is in
trouble. An idle and inactive person depending just on luck has to suffer like यत भविष्य. ओके मित्रों, तो लास्ट वन का आंसर ये हमें लिखना है. ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8 भी कंप्लीट होती है. ओके, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर 9. मैच द कॉलम मित्रों, कॉलम ए और बी को मिलाना है. ओके, दिवराहा, दिवराहा के साथ कौन सा आंसर आएगा? थर्ड वन. अहो बहुमस्यो अयम हदः. ओके, सेकंड वन. अनागत विधाता, अनागत विधाता के कौन सा आंसर आएगा? फिफ्थ वन. तत् न युक्तम सांप्रतम क्षणमपि अत्र अवस्थातुम. ओके मित्रों, यद भविष्य, यद भविष्य के साथ फोर्थ वन आंसर आएगा. यद भावी न तद भावी. ओके, फोर्थ वन. प्रति उत्पन्नमति के साथ फर्स्ट वन आंसर आएगा. तद उत्पन्ने यथा कार्यम तद अनुष्ठेयम. ओके मित्रों, तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, साथ में चैप्टर भी कंप्लीट होता है. ओके, आपको एक्सरसाइज नोटबुक में लिखनी है. मैंने आपको बताया है, फर्स्ट हमें ग्लोसरी लिखनी है, बाद में ट्रांसलेशन लिखना है, और ट्रांसलेशन के बाद हमें एक्सरसाइज लिखनी है. ओके मित्रों, थैंक यू.